Assalamu alaikum 7th class. This is your science lesson. I hope you'll be safe and fine. Class, if you have followed the last lecture, then you must know that we have started our unit number 4, that is about living organisms and their environment. We have discussed ecologist, types of environment and habitat. Today our topic of discussion is ecosystem. First of all, let's define the ecosystem. Ecosystem is the relationship between living organisms and their environment. So, first of all, let's define the environment. Environment, for example, this is a cup of tea. This is a system. Inside this cup, there is a tea. For this tea, all the surrounding is environment. So, environment includes non-living factors around us, surrounding around us. So that is environment. Here is environment defined. All the living things which affect the way of life of particular plant or animal are called its environment. And the ecosystem, the relationship between living organisms and their environment make an ecosystem. Here ecosystem components are discussed. A living organism interacts with its environment, makes an ecosystem. Ecosystem has two major components: biotic and abiotic. Abiotic includes the non-living factors and biotic includes the living factors such as predator, food, mates. Abiotic include the physical as well as climatic factor. Physical factor includes air such as oxygen and carbon dioxide in air, light intensity, water availability. Climatic factors include टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. तो ये फैक्टर्स हैं एबायोटिक और बायोटिक इकोसिस्टम के, जो इकोसिस्टम को बनाते हैं. बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जिसमें एयर, वाटर, लाइट, ये सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट डिस्कस किया अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है जिसमें उनके हैबिटेट, उनके डिफरेंट जो है कलेक्शंस जैसे पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इस सब को डिस्कस किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस मैप. इंडिविजुअल, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तब हम उसको इंडिविजुअल का नाम देंगे. अब जब एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशी के बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशी लिव इन अ प्लेस टुगेदर, एक ही हैबिटेट में रहते हैं, तब हम उसको पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ईच स्पीशी लिविंग टुगेदर ऑन द सेम हैबिटेट मेक्स अ पॉपुलेशन. अब जब पॉपुलेशन बहुत सारी मिलती हैं, जैसे प्लांट्स हो गई, फ़िश हो गई, कोई इंसेक्ट हो गया, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं आपस में, देन दे मेक कम्युनिटी. All of the populations of organism in an ecosystem make a community. अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलके जब फिज़िकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जैसे वाटर है, सनलाइट है, एयर है, तब वो बनाती हैं इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट एंड इंडिविजुअल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम. तो हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो रहता है, उसका होम होता है, डैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट. सो यहाँ पे हमने कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशंस देखी और इंडिविजुअल का डिस्कस किया और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया, इनकी एग्जांपल्स को. अब नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स. काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स में सबसे पहले हम हैबिटेट को डिफ़ाइन करते हैं. हैबिटेट इज़ अ होम टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम. लेट्स डिफाइन इट फ्रॉम द प्रीवियस पेज. हैबिटेट इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच अ प्लांट, animal or any other organism lives or occupies. There are two types of habitats: simple habitat, complex habitat. Simple habitat और complex habitat में difference यही है कि simple habitat is occupied or is inhabited by a single community, जबकि complex habitat inhabit होता है large number of communities से. Simple habitat is occupied by a single community and the complex habitat is occupied by large number of communities. यहाँ पे इसकी definition mention है. Some habitats may be inhabited by a single community of organism. These types of habitats are called simple habitats. For example, a honeybee lives in the bee hive where only honeybee are the inhabitants. Similarly, ants live in their colony where no other living organisms can live. Some habitats may be inhabited by several communities in order to survive. These types of हैबिटेट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स. इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस हैं. जैसे ट्री है, उसमें बर्ड्स रहते हैं घोंसले बना के,
इसी तरह रोटिंग लॉग है इज़ हैबिटेट फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अगर कोई चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। इन कम्प्लेक्स हैबिटेट वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर। उनके दरमियान फिर इंट्रैक्शंस डेवलप करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स सच एज वुडलैंड्स, ग्रासलैंड्स, रिवर, कोस्ट। दीज आर हैबिटेट्स ऑफ लार्ज कम्युनिटीज़।